Seeza and I represent SafoKid, one of the largest organizations in India that focuses on safety of children till the age group of 12 years. Now when there are talks of COVID third wave and its probability of affecting children, parents are worried the most. While we do not want to create unnecessary panic, but the aim is to ensure that parents are able to take timely steps to boost mental health and immunity of their kids. While we understand that building mental health and building the immunity of your kids isn't going to happen overnight, it takes time. Considering the next wave is predicted in September, we want parents to start preparing right now. However, most parents are unaware and don't know what to do to prepare their kids for. That is the sole reason why we are compiling a detailed video highlighting what parents can do age group wise. As it is rightly said, in times of despair, it is important to maintain your mental health. The COVID-19 pandemic has had a major effect on our lives. Many of us are facing challenges that can be stressful, overwhelming, and cause strong emotions in adults as well as children. If we are mentally strong, we can together fight this pandemic. Today we have with us Dr. Kriti Vashisht, who is a child psychologist, counselor, and a pranic healer. And she will give us her perspective on the anticipated third wave, which is going to be very challenging for kids, and help us in knowing how can parents and their children prepare for the possible third wave. Dr. Kriti, thanks for joining us. Thank you so much, Seeza. So basically, I'm Dr. Kriti Vashisht. I'm a child psychologist, a counselor, and a pranic healer, as you just told. I have approximately 10 years of experience where I have dealt with children, their problems, their mental health issues, be it related to the education, emotional development, or social development, personality development, etc. And moreover, I'm also an academician. I'm an assistant professor working in one of the renowned universities in Rajasthan. So, and basically, I'm also a researcher. I call myself a researcher also because whatever suggestions I give or whatever interventions I give to my patients or clients, that is on the basis of the researches which I do. First, I confirm and then I put up those interventions. I'm sure our viewers are really going to learn from you today, the suggestions that you give. So I'm going to start with the questions. My first question from you is, what is your viewpoint about the possible COVID third wave and its effect on children? So, Seeza, I know हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सुन रहे हैं, जहाँ भी हम न्यूज़ चैनल देखें या न्यूज़पेपर देखें, हर जगह सिर्फ कोविड थर्ड वेव और बच्चों पे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है, इस चीज़ के बारे में ही बात होती है. So first of all, I want to say कि बच्चों पे अफेक्ट होने वाला है, बट एडल्ट्स बहुत ज़्यादा लूज आउट हो जाएं ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि एडल्ट्स को तो वो प्रिकॉशंस लेने ही हैं. इट्स जस्ट कि बच्चों पे जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो एक एड ऑन चीज़ हो रही है. सो उस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा. रादर जो पहले भी फर्स्ट और सेकेंड वेव भी जो आई है उसमें भी दो चिल्ड्रन वर नॉट द फेस ऑफ द पेंडेमिक और द क्राइसिस, बट येस दे वर द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ दैट. बिकॉज जो भी हो रहा था, चाहे पेरेंट्स सफ़र कर रहे थे, चाहे सोसाइटी सफ़र कर रही थी, चाहे उनका एजुकेशन सफ़र कर रहा था, बट एट द बैक चिल्ड्रन वर द वंस हु वर सफरिंग. बेसिकली अगर मैं यहाँ बताऊँ कुछ वेज जहाँ पे जो चिल्ड्रन ने जिस तरीके से फेस किया है इस पेंडेमिक को या कर सकते हैं आने वाले टाइम में, चैलेंजेस फॉर एग्जांपल, फर्स्ट तो अगर वो खुद इन्फेक्ट हो जाएं या हो चुके हैं तो डेफिनेटली हेल्थ वाइज उन्हें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और उसके लिए हमें उनको प्रिपेयर करना, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है. दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इमीडिएट सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट. यानी कि बच्चे पेरेंट्स में जो उनकी सैलरी को लेके चेंजेस आए हैं, उनकी जॉब को लेके चेंजेस आए हैं,
उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। थर्ड जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, आई ऑल्सो कंडक्टेड अ रिसर्च ऑन द फैमिली स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. सो इट वॉज रियली नाइस बिकॉज पेरेंट्स इनिशियली अगर वर्किंग है, वो बाहर जा रहे हैं और सडनली उनको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, बच्चे को पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है. एवरीथिंग वॉज रियली नाइस इनिशियली, जो इनिशियली 3-4 महीने थे. बट आफ्टर दैट थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग वर्स. पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, फ्रस्ट्रेशन होने लगा, आदत नहीं है उस तरीके से घर में बैठने की, काम करने की. सो चिल्ड्रन वर द वन हु बिकेम द विटनेस ऑफ दिस वायलेंस एंड अब्यूज. सो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल चुकी है ऑलरेडी. आई डोंट नो कि जिन बच्चों ने ये विटनेस किया है पेरेंट्स के में कॉन्फ्लिक्ट होना या फाइट होना, या उन बच्चों ने कहीं अब्यूज फेस किया है डायरेक्टली, तो वो लोग इस ट्रोमैटिक इवेंट से पता नहीं लाइफ लॉन्ग कभी निकल भी पाएंगे या नहीं. मोर ओवर बच्चे बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस एजुकेशन, जो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन होने लगी है, सो पेरेंट्स ऑब्वियसली उनको डायरेक्ट डेटा अवेलेबल करवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उनका स्क्रीन टाइम बहुत इंक्रीज हो गया है. प्लस जो थोड़ा सा हमारा बड़ा एज ग्रुप है जो अपने आप पढ़ाई कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल मे बी 6 or 7 years above, वो दे आर एक्सपोज टू द इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन द इंटरनेट एज वेल. सो वो भी कहीं ना कहीं रिस्की है बच्चों के लिए. ओके, सो इन योर ओपिनियन अगर पेरेंट्स अवेयर हो भी जाते हैं, कैन दे प्रिपेयर देयर चिल्ड्रन बेटर फॉर दिस पॉसिबल थर्ड वेव, एंड व्हाट रोल विल मेंटल हेल्थ प्ले in helping parents prepare children for this wave? So definitely parents are the first teachers of their children. तो अभी तो वैसे भी सबसे ज़्यादा कांटेक्ट पेरेंट्स का ही हो रहा है बच्चों के साथ, तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा ये डिसाइड करने के लिए कि बच्चे की मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी. सो पेरेंट्स अगर इस चीज़ को लेके अवेयर हों, पेरेंट्स उस चीज़ को अगर फॉलो करें, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी तरह से किसी भी बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हैं. मोर ओवर अगर बच्चे को कभी हो भी जाए या कुछ सिम्टम्स भी हों, तो उस टाइम भी क्या करना है उस चीज़ के लिए उसे प्रिपेयर किया जा सकता है. बट यस, वन थिंग पेरेंट्स नीड टू कीप इन माइंड इज दैट, जैसे कि कहा जाता है कि अपनी दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लें. सो ओनली पीपल और पेरेंट्स हु आर मेंटली हेल्दी कैन एक्चुअली हेल्प children being mentally healthy, because children are most vulnerable to this situation. ठीक है, बच्चों को किसी भी चीज़ का, किसी भी सिचुएशन का एनालिसिस प्रॉपर करना नहीं आता है. उनका माइंड उतना डेवलप नहीं है इस टाइम कि वो करेक्टली किसी सिचुएशन को एनालाइज कर सके. उनमें सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं होता है. बट बड़े लोग बाहर जा रहे हैं या किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, वो प्रॉपर सैनिटाइज कर सकते हैं, उनको पता है कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है. बट बच्चों में वो सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं है. वो जाएंगे, वो कहीं भी टच कर देंगे, आके उसी हाथ से खा लेंगे. तो अगेन इट्स it depends on parents how they are making the children aware, और कितनी प्रोटेक्शन वो दे रहे हैं उस टाइम बच्चों को. मोर ओवर जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर कुछ बच्चे हैं जो फ़ोन इजीली यूज़ कर सकते हैं या उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो कोई भी वीडियो आता है बच्चे बहुत इजीली उस पर बिलीव कर लेते हैं. पेरेंट्स अगर कोई बात कर रहे हैं, बच्चे बहुत इजीली उस पर बिलीव कर लेंगे. सो अगेन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट टू थिंक एंड टॉक. बेसिकली उनको सोचना चाहिए बात करने से पहले कि वो क्या बता रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं बच्चों को, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या नहीं, और वो एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है या नहीं किसी भी बच्चे को देने के लिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट चिल्ड्रन. बच्चों को से ये चीज़ें छुपाना, बाहर में क्या चल रहा है, ये सही तरीका नहीं है. बट एक बहुत थिन लाइन होती है कि जब हम बच्चे को कुछ बता रहे हैं, सो rather than creating a fear in them, they should feel more confident about the situation, that they should feel confident on them. They should have the sense of confidence that they are able to handle that situation, or they will be able to handle that situation. तो एक बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में आप बच्चों को समझाइए, उनकी एज अप्रोप्रिएट उसके हिसाब से आप समझाइए जिस एज के वो हैं, कि किस तरीके से इस सिचुएशन को डील किया जा सकता है. So in your opinion, this has to be fought together, in the sense
पेरेंट्स को भी पूरा इसमें पिक्चर में आना पड़ेगा, फोर फ्रंट पे आना पड़ेगा, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली के अंदर कल्चर हो, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड हो. वी हैव टू फाइट दिस टुगेदर. yes definitely. एंड ऑफ कोर्स एंड पेरेंट्स, एज आई सेड कि पेरेंट्स जो हैं वो ही, बच्चा उन पे ही डिपेंडेंट है. जो पेरेंट्स कह रहे हैं, जो पेरेंट्स कर रहे हैं, बच्चा वही फॉलो करता है. एंड वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट होते हैं. आप उनको बोलोगे कि चोरी मत करो और आप खुद चोरी कर रहे हो, तो बच्चा नहीं सीखेगा कि चोरी मत करो. वी हैव टू लीड देम बाय एग्जाम्पल्स. सो अगर हम बोल रहे हैं बच्चे को कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो पेरेंट्स खुद सबसे पहले वो चीज़ें फॉलो करें. आधे से ज़्यादा तो आप लोग देखेंगे कि अगर पेरेंट्स वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो कई बार बच्चों को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चे खुद वो चीज़ फॉलो करने लग जाएंगे. मोरोवर, एक और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करना चाहूँगी कि पेरेंट्स को समझना पड़ेगा ये चीज़. इवन इफ आई अंडरस्टैंड दैट सम पेरेंट्स माइट बी वर्किंग, घर में उनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, बहुत प्रेशर आ गया है, बट देन यू नीड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स. आपका बच्चा आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए. आपको अब एक नया रोल मिल गया है, स्पेशली क्योंकि बच्चों को एजुकेशन रिलेटेड भी काफ़ी डाउट्स हो रहे हैं कि देयर इज सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी कि कब स्कूल्स खुलेंगे, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, बोर्ड होंगे या नहीं होंगे. या छोटे बच्चे भी हैं तो फर्स्ट टाइम जो स्कूल जाने वाले थे इस साल से या लास्ट ईयर जाते, उनका सोशल डेवलपमेंट वैसा नहीं हो रहा है. सो नाउ पेरेंट्स विल हैव टू प्ले द रोल ऑफ द टीचर्स ऑल्सो, बिकॉज टीचर्स अभी क्या कर रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, एंड इवन दे कैन नॉट डू मच अबाउट इट. वो आते हैं, क्लासेस लेते हैं, काम बताते हैं, एंड देन the kids have to do that. Now it is the responsibility of the parent to basically sit with them, check whether they are doing it or not, and make a proper timetable for them. Because अब घर में क्या है, लीनियंसी हो गई है, तो बच्चे का जब मन करता है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. कई बार पेरेंट्स भी ये सोच लेते हैं कि जब स्कूल शुरू होंगे तब से चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी, जैसे कि कोई समर वेकेशन चल रहा हो. बट एक्चुअली में ये है नहीं. एक साल ऑलरेडी निकल चुका है. सो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन. और ज़्यादा टाइम अगर निकल गया तो पेरेंट्स जो है कैन नॉट डू एनीथिंग. वो टाइम निकल गया तो निकल गया. So now they have to play a very, very major role. They have to play the role of the teachers. They have to play the role of an exemplar. They have to play the role of, a serious adult to basically make their children, do what they would have done when the things were normal. आप घर में वैसा environment बना के रखिए. जब स्कूल होता था तो पूरा एक टाइम टेबल फॉलो होता था. इंग्लिश की क्लास है, मैथ्स की क्लास है, फिर ये 2 बजे बच्चा घर आ रहा है, फिर वो खा रहा है, सो रहा है, खेलने जा रहा है, ये सब चीज़ें. सेम टाइम टेबल, सेम टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा घर में, तभी जाके चीज़ें वैसी रहेंगी. नहीं तो बच्चा लथार्जिक होता जाएगा. लथार्जिक होगा, वो गलत कंटेंट देख रहा है इंटरनेट पे और आप अवेयर नहीं हो और चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी. इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड. मोरओवर द फिजिकल इम्यूनिटी विल बी अफेक्टेड और वो ज़्यादा प्रोन हो जाएगा कोविड के. So we have to be very careful about this. Okay, so we've done several interviews with doctors, and they've confirmed that obesity is also a very big problem in kids, and it plays a very major role in making COVID infections very severe. So are bad eating habits also impacting mental health and eventually leading into the severity of COVID infections? Yes, definitely, because ये तो हुआ है कि कोविड जब से हुआ है और लॉकडाउन स्पेशली जब से हुआ है, तब से लोगों की ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है. बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गो आउट, तो वो घर में ही इस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं, रेसिपीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या अगर बाहर से कुछ मंगा भी लेते हैं तो बड़ा जंक और पैक्ड फूड खा रहे हैं, खुद भी प्लस बच्चों को भी दे रहे हैं. सो ओबेसिटी डेफिनेटली एक बहुत ए थ्रेट है सोसाइटी को ड्यूरिंग दिस टाइम पेंडेमिक में. और ये चीज़ें जो है ओबेसिटी, और देयर आर अदर ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो जो हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से ख़राब हो गई हैं. यानी कि हम रात को देर तक जागते हैं, बच्चा जागता है, सुबह देर से उठ रहा है, तो रात को देर तक अगर वो जागा हुआ है तो कुछ भी पैक्ड फूड वो ले आया, वो चिप्स खा रहा है या पॉपकॉर्न खा रहा है या कुछ भी इस तरीके का सामान.
सो और एक्सरसाइज नहीं हो रही है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्सरसाइज हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों की वजह से जैसे जैसे बच्चा वेट गेन करने लगेगा और फिर वो अपने आप को कंपेयर करेगा दूसरे लोगों से, तो वो उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकता है। और जैसे जैसे मतलब कोई भी नेगेटिव थॉट अगर हमारे माइंड में आता है, साइकोलॉजी सेज दैट योर थॉट्स आर वेरी पावरफुल। अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे या नेगेटिव चीज़ों के सराउंडिंग में रहोगे, तो कोई भी डिजीज अगर आपके आसपास है वो बहुत इजीली आपकी बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर देगी, बिकॉज वी जनरेट दोज हॉर्मोन्स। हर चीज़ के हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं। तो अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, या नेगेटिविटी हमारे आसपास बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में से वो हॉर्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे एंड वी विल बिकम प्रोन टू दैट पर्टिकुलर डिजीज। Okay, from a child psychologist's perspective, for suggesting preventive measures, what age groups would you divide 0 to 12 years of children in? And what is your advice for these age groups? And any interventions also that parents need to follow or maybe keep in mind to motivate their kids to follow healthy lifestyle and routine, and also to keep them happy and positive? Yeah, definitely. So basically, if I have to divide these children, I would divide them into preschool children, that is from 3 years to 6 years of age, as well as the school age children, that is from 6 to 12 years of age. I am not counting the infants in this particular group, because इन्फेंट्स जो हैं उनका बिहेवियर ही हमें ऑब्जर्व करके हम पता लगा सकते हैं। इन्फेंट्स हर चीज़ के लिए सिर्फ रोता है वो बच्चा, उसको दर्द हो रहा है तो वो रोएगा, वो भूखा है तो वो रोएगा, वो इफ ही वांट्स टू गेट हिज डायपर चेंज वो रोएगा। तो वो सिर्फ रो के ही अपनी बात कहने की कोशिश करता है। तो उसमें अगेन इट इज़ द रोल ऑफ द पेरेंट टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम विद द चाइल्ड, एंड अ पेरेंट इज द वन हु कैन अंडरस्टैंड इन दैट सिचुएशन कि उसके बच्चे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जहाँ तक अगर मैं प्री स्कूल बच्चों की बात करूँ, तो उनके साथ पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वो बच्चा परेशान होगा किसी चीज़ को लेके, तो वो बहुत वायलेंस शो कर सकता है, या फिर वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर शो कर सकता है, जहाँ पे वो आप अगर कोई काम भी कर रहे हो तो बच्चा आके 4 बार 5 बार सिर्फ यही बोलेगा कि मम्मा ये देख लो, मम्मा ये देख लो, या पापा सुनो मेरी बात, तो बार बार यही बोलता रहेगा। एंड जब आप अपना काम कर रहे हो तो यू माइट गेट लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, आप बच्चे पे गुस्सा निकाल सकते हो देन। और इट हैज़ बीन सीन कि पेरेंट्स अपना जो एक सोर्स बना लिया है गुस्सा निकालने का, या एक जो टारगेट है वो बच्चे ही हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप एम्पथाइज कीजिए उस बच्चे के साथ, उस छोटे बच्चे के साथ, कि उस पर क्या गुजर रही होगी। वो बच्चा जो बाहर जाता था, खेलता था, स्कूल जाता था रेगुलरली, एक रूटीन था, और अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की ज़रूरत है। कभी भी बच्चे पे चिल्लाइए मत, कभी भी बच्चे पे मत चिल्लाइए। अगर वो बहुत इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर भी शो कर रहा है कि वो बहुत अग्रेसिव हो रहा है, वायलेंट हो रहा है, या वो रो रहा है, येस आई विल नॉट से कि आप बहुत पोलाइटली उसको बस बात कीजिए या उसकी सारी बातें मान लीजिए, बट देयर इज़ अ वे ऑफ टैकलिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। आप यू हैव टू सेट द ग्राउंड रूल्स फॉर दैम, एंड आपको उसके लिए थोड़ा सा रिजिड होना पड़ेगा। जैसे अगर आपने बोल दिया कि भाई आपका स्क्रीन टाइम सिर्फ हाफ एन आवर का है और इससे ज़्यादा आप नहीं देखोगे, देन गिव देम दैट हाफ एन आवर, और उसके बाद आप उनसे फ़ोन या टैबलेट या टीवी जो भी है वो ले लीजिए। और उसके बाद भी अगर बच्चा रो रहा है या नहीं समझ रहा है, सो लेट देम क्राई फॉर 1 मिनट और 2 मिनट्स। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपका बच्चा रो रहा है, चीख रहा चिल्ला रहा है, तो करने दीजिए, बट यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन, वट एवर रूल्स यू हैव मेड। आप कुछ एक्टिविटीज़ कर लीजिए। हमें बहुत सामान मंगाने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे आपने बच्चों, जैसे आप अगर टॉडलर है आपका बच्चा, तो आपने ब्लॉक्स दे दिए उसको कलरफुल, देन लेट देम जॉइन द ब्लॉक्स, कलर दे दीजिए, वो बच्चा पेंट करता रहेगा। आप खुद उसके साथ बैठिए। आप स्टोरी बुक्स, रादर देन शोइंग देम वीडियोस, आप स्टोरी बुक्स उनको रीड आउट कीजिए, देन दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प। एक फैमिली रूटीन बना के रखिए, सारे लोग एक साथ बैठें, बात करें, इस चीज़ का भी बहुत इम्पैक्ट होता है बच्चे के ऊपर। इफ आई टॉक अबाउट द एज ग्रुप फ्रॉम 6 to 12 years, अगेन
patience is very much required here also. Playing sessions are very very important. इन बच्चों को rather दोनों एज ग्रुप के बच्चों को मैं कहूँगी कि फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है. पेरेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें कि बच्चा कम से कम 1 घंटा भाग रहा है, दौड़ रहा है, साइकिल चला रहा है, घर में जो भी स्पेस है उसको करने दीजिए. रादर आप भी उसके साथ कीजिए एक्सरसाइज, योगा, हर चीज़. बिकॉज साइकोलॉजी में एक बहुत कॉमन डिजीज है, डिसऑर्डर है जो बच्चों के साथ होता है, दैट इज ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जो एज ग्रुप के बच्चे हैं इनमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी. अगर हम लोग भी किसी इस एज ग्रुप के बच्चे के साथ बैठे हैं तो हम देखेंगे हमारे मुंह से निकल ही जाता है, अरे भाई ये बच्चा थकता नहीं है क्या, क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी है. तो इस टाइम वो एनर्जी निकलने का कोई चैनल दिख नहीं रहा है. वो स्कूल जाते थे, खेलते थे, थकते थे, अपने आप वो पैटर्न फॉलो होता था. अभी वो नहीं है. तो अगर हमने बच्चों की फिजिकल हेल्थ के ऊपर अभी ध्यान नहीं दिया, फिजिकली उनको हमने ड्रेन आउट नहीं किया, वो एनर्जी अगर नहीं निकाली, सो प्रॉब्लम्स लाइक दिस, दैट इज ADHD, वो बच्चे में डेवलप हो सकती है. So, like the age groups that you've divided, we have some specific questions that we need to ask from you. First is mental health issues of home quarantine and how to deal with them. If a child who's the age group of the 3 age groups that you've divided, if they are COVID positive and they are asked to home quarantine, how should parents deal with that situation, and how can their mental health should be boosted around that time? Okay, so yes, there are a lot of cases जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि बच्चों को क्वारंटाइन करना पड़ रहा है. एंड जो यूजुअली पेरेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, या रादर बच्चे खुद भी जो ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो होता है जैसे बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है बच्चों में. बच्चों में एक फियर ऑफ इन्फेक्शन भी होता है कि बच्चे को डर होता है कि अगर मुझे कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, कहीं मैं अपनी मदर को ये बीमारी ना दे दूं, या मैं अपने फादर को ये प्रॉब्लम ना दे दूं. समटाइम्स दे आर लिटिल कंफ्यूज्ड. उनको खुद को नहीं पता होता है, इनएप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं. उन्हें नहीं समझ आता, उन्हें लगता है कि पता नहीं ये चीज़ कभी ठीक होगी या नहीं होगी. कई बार ऐसे होता है दे आर नॉट क्लियर अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द क्वारंटाइन. उनको लगता है कि 2 दिन या 3 दिन के बाद एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल, और फिर 2 दिन 3 दिन बाद उनको कहा जाता है नहीं, यू हैव टू वेट फॉर 2 more days. सो अगेन दैट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द चाइल्ड. So in these kind of situations, जो एक पेरेंट जो रोल प्ले कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द चाइल्ड. अगर बच्चे को सिम्टम्स दिख रहे हैं और उसको क्वारंटाइन करना पड़ रहा है, तो आप बहुत क्लियरली उसको बताइए कि कब तक वो क्वारंटाइन रहेगा. भाई जब तक सिम्टम्स दिखेंगे तब तक बच्चा क्वारंटाइन में रहेगा. एंड यू हैव टू मोटिवेट देम, यू हैव टू बी you have to tell them that you are there. You have to create a supportive environment. You have to also promote some altruistic behavior in them. For example, बच्चे जो होते हैं उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर हम उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें तो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को निभाते हैं. सो आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं कि अगर आप क्वारंटाइन हो रहे हो तो इट्स नॉट ओनली गुड फॉर यू, रादर यू आर समवॉट हेल्पिंग योर पेरेंट्स ऑल्सो. आप भी जब रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाओगे. मोरओवर ये चीज़ आगे भी नहीं फैलेगी. तो वो बहुत वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो चीज़ क्वारंटाइन वाला टाइम निकालेंगे. देन जो भी इंफॉर्मेशन आप बच्चे तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है, एक तो वो बहुत अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो पेरेंट्स को खुद को एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, ताकि वो बच्चे तक वो चीज़ पहुंचा सकें. कई बार बच्चा बैठा होता है, क्वारंटाइन में है, और वो अपने फ़ोन के थ्रू कोई वीडियोज़ आ रहे हैं या कुछ, तो वो हर उस चीज़ पे बिलीव करने लग जाता है, और वो आके हो सकता है पेरेंट्स को भी बोले कि मैंने ये वीडियो देखा था और इसमें इस तरीके की चीज़ें बोली गई हैं, सो इज़ इट एक्चुअली लाइक दैट. सो अगर इस तरीके के कभी भी बच्चे डाउट्स लेके आते हैं तो आप उन्हें अवॉइड मत कीजिए. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिट डाउन विद देम एंड टेल देम एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रियलिटी. अगर ये सच है तो किस एक्सटेंट तक सच है, और गलत है तो किस एक्सटेंट तक गलत है. मोर ओवर, येस, अगेन promoting the healthy habits, for example yoga, meditation, proper exercise,
एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमें काम करता है. सो अगर कोई भी किसी चीज़ को लेके डर है या बच्चा सोच रहा है कि आगे क्या होगा, अनसर्टेनिटी है, फियर है, तो मेडिटेशन उसको हेल्प करेगा अपने आप को काम करने के लिए. एक योगा जो हम कर रहे हैं या प्राणायाम अगर हम करते हैं तो उसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं दैट गिव्स मोर ऑक्सीजन टू आवर ब्रेन. सो हाउ कैन पेरेंट्स रिकॉग्नाइज कि उनके बच्चे में कुछ एंजाइटी या फियर जैसी प्रॉब्लम है या कुछ इस दौरान उनके अंदर डेवलप हो रही है ये चीज़, वो कैसे इस चीज़ को पकड़ सकते हैं अपने बच्चों में और उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? Yes, children do show some symptoms, as you know, even I mentioned this earlier also, कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं. वो अपने वर्ड से ज़्यादा अपने बिहेवियर में कुछ चीज़ें शो करने की कोशिश करते हैं. एंड अगेन पेरेंट्स हैव टू बी ऑब्जर्वेंट. आपको अपने बच्चों में थोड़ा सा भी बिहेवियर में चेंज लग रहा है, कुछ अलग चीज़ लग रही है, तो आपको उसको रिकॉग्नाइज कीजिए एंड ट्राई टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली इशू क्या है. बिकॉज कई बार होता है बच्चों को खुद को ही नहीं पता होता है कि दे आर गोइंग थ्रू एंजाइटी या दे आर गोइंग थ्रू सम एक्सेसिव वरी और फियर. वो अनकॉन्शियस उनका माइंड में वो चीज़ होती है जो उनके बिहेवियर में दिखती है. फॉर एग्जाम्पल जो छोटे बच्चे होते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन, अगर मैं वापस उस एज ग्रुप में आ जाऊँ तो वो बच्चे आपको कुछ इस तरीके के सिम्टम्स दिखा सकते हैं, जैसे कि पहले वो लोग अकेले खेल लेते थे या अकेले एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते थे, बट नाउ दे विल नॉट डू दैट. दे विल हैव अ फियर ऑफ बीइंग अलोन. वो अकेले कहीं नहीं जाना चाहेंगे, अकेले कहीं नहीं बैठना चाहेंगे. अगर आपका बच्चा ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखा रहा है जहाँ पे वो आपको हमेशा अपने साथ ले जाना चाहता है और बिल्कुल रोने लग जाता है कि मुझे नहीं अकेले यहाँ बैठना या अकेले मुझे ये नहीं करना, तो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग. वो कुछ ऐसा सोच रहा है जो उसके लिए सही नहीं है, विच इज नेगेटिव. एंड अगर आपका बच्चा ये बोलता है दैट ही इज हैविंग बैड ड्रीम्स, देन अगेन दिस इज एन अलार्मिंग सिग्नल. आपको पूछना पड़ेगा, आपको उससे बात करनी पड़ेगी. एक बार होता है ठीक है, बट अगर कंटिन्यूसली अगर वो बोल रहा है 2-3 बार कि उसे बुरे सपने आ रहे हैं, तो आपको वो चीज़ भी फिगर आउट करेंगे. बिकॉज ड्रीम्स आर रोड्स टू आवर अनकॉन्शियस माइंड. जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होता है वो ही हम कई बार सपनों में देखते हैं. सो अगेन वो ड्रीम्स हमारे उस चीज़ को आफ्टर फिगरिंग आउट कि उस बच्चे ने क्या ड्रीम देखा, पूरे सपने आ रहे हैं, वी कैन रिलेट कि बच्चा डेफिनेटली कुछ बहुत ऐसी चीज़ें सोच रहा है जिससे बच्चा डरा हुआ है. बेड वेटिंग अगर होती है या बाउल मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं है या कॉन्स्टिपेशन अगर बच्चे को कंटिन्यूसली फेस कर रहा है, दैट मीन्स कुछ अगेन इट इज़ रिलेटेड टू द माइंड. चेंजेस इन एपेटाइट, या तो बच्चा नॉर्मल से ज़्यादा खा रहा है या नॉर्मल से कम खा रहा है कंटिन्यूसली, अगेन दिस इज़ अ सिम्टम. टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा थ्रो कर रहा है, अटेंशन चाहता है आपकी बार बार हर बात पे, चाहे अच्छा बिहेवियर करके चाहे बुरा बिहेवियर करके, then again it is a symptom that parents need to keep in mind. Then moving towards the age group of 6 to 12 years, ये बच्चे जो होते हैं अगेन इनके साथ भी नाइटमेयर्स हो सकते हैं. इरिटेटेड फील करते हैं ये बच्चे बहुत ज़्यादा ना. आप उनको कुछ भी बोलोगे तो वो नॉर्मल आंसर नहीं करेंगे, वो फ्रस्ट्रेट रहेंगे या बहुत इरिटेटेड से रहेंगे. अग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकते हैं, कई बार अटेंशन के लिए भी अग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकते हैं. या आप उनको कोई प्यार से भी समझाओगे तो दे माइट जस्ट रिप्लाई इन अ वेरी रूड मैनर. उनको कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हेडेक, स्टमक एक, या और इस चीज़ का कोई मेडिकल रीज़न नहीं होगा. अगर आप डॉक्टर को भी दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी. अगर इस तरीके से उनको हेडेक और स्टमक एक या कोई भी बॉडी पार्ट में कोई पेन है, तो दैट मीन्स कि बच्चा बहुत ओवर थिंक कर रहा है, वो सोच रहा है काफ़ी ज़्यादा, वो डरा हुआ है. विड्रॉल सिम्टम्स आप उनमें देखोगे कि उनको जिस चीज़ को बहुत इंटरेस्ट लेके करते थे, चाहे म्यूजिक सुनना हो गया या स्केटिंग करना हो गया, कोई भी एक्टिविटी, अब उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में बिल्कुल नहीं रहा है. सो अगेन दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. कई बार होता है कि फॉरगेटफुलनेस, कि वो चीज़ें बहुत रिटेन नहीं कर पाते हैं. आप डाइनिंग रूम या लिविंग रूम में बैठे और अपने बच्चे को बोला कि प्लीज़ किचन से स्पून ला दो, तो 5 मिनट हो गए बच्चा आया ही नहीं, या फिर बच्चा आया वो स्पून की जगह कुछ और लेके आ गया, वाटर बॉटल लेके आ गया. तो
अगेन दिस इज अ सिम्टम। आप बच्चे पे गुस्सा या नाराज होने की जगह कि ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं समझता, इसको कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, आप समझिए कि बच्चा जो है शायद बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, इसलिए वो उसने अटेंशन उन चीज़ों की तरफ नहीं दिया। So also there are any specific medical conditions to keep in mind when following this advice that you shared today? मेडिकल कंडीशंस बेसिकली बच्चों के साथ तो ऐसा कोई फिजिकल मेडिकल कंडीशन नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली अगर आपका बच्चे को कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता है, तो आप हाँ फिर दूसरा एक थ्रू योगा या थ्रू प्राणायाम या कोई और तरीके से उसको थोड़ा सा उसकी जो फिजिकल एनर्जी उसके अंदर है उस चीज़ को चैनलाइज करने की कोशिश कीजिए। मोर ओवर बिकॉज इनिशियली मैंने ये चीज़ कही थी कि बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस सिचुएशन या इस क्राइसिस में, तो उन बच्चों में भी एक ग्रुप ऐसा है जो उससे भी ज़्यादा वल्नरेबल है, जो है उन बच्चों का जो ऑलरेडी किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं। पहले वो बच्चे स्कूल जाया करते थे, दे हैव स्पेशल स्कूल्स, बट अब वो चीज़ नहीं हो रही है। तो उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, वो नहीं कर पाते हैं। अगेन पेरेंट्स के लिए वो एक ना थोड़ा सा टाइम होता था खुद के लिए जब बच्चे उनके उस टाइम स्कूल जा रहे हैं, तो बिकॉज उन पेरेंट्स की कंडीशन या उन पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ और भी वर्स होती है जो सुबह से शाम तक एक स्पेशल चाइल्ड के साथ डील कर रहे हैं। तो अगेन वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, सो दे शुड सीक हेल्प। पेरेंट्स आप बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, आप करिए, बहुत अच्छी बात है, बट आपका मेंटली हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप बच्चों के साथ बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कि प्रेजेंट मोमेंट में आप रहें, आप भी और आपका बच्चा भी। आप जो भी बातें कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दैट शुड बी रिलेटेड टू प्रेजेंट। हम क्या करते हैं, हम जब पुराना अगर कुछ हो गया है या पिछले साल से ये चल रहा है वो चल रहा है, वो सोचते हैं, या हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होगा, हम सिर्फ एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। सो अगेन दैट इज नॉट गुड फॉर अस एंड इवन फॉर द चाइल्ड, बिकॉज चाइल्ड की भी वो हैबिट बन जाएगी कि फ्यूचर का सोच के, विच वी डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या होने वाला है, हमें नहीं पता, तो उसका सोच के अभी से एंजाइटी क्रिएट कर लेना, दैट इज not good for those children who are already suffering and even for the normal. Okay. So during the second wave, you must have come across many maybe patients or kids or parents who maybe suffered during the second wave, similar conditions. Are there any case studies or maybe lessons that you want to share with the viewers of this video? Any specific advices? Yes, definitely. एक तो जो मैंने बहुत कॉमन चीज़ देखी और इस चीज़ के बारे में मैंने इस वीडियो में भी बात किया है, अगेन एंजाइटी एंड फियर, नॉट ओनली इन द चिल्ड्रन बट इन द पेरेंट्स एज वेल। और पेरेंट्स में मैंने बच्चों से ज़्यादा एंजाइटी देखी है। सो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एंजाइटी यूजुअली क्या होता है। एंजाइटी होती है कि जब हम फ्यूचर को लेके वरी करने लग जाए, जब हमें पता नहीं है, हम ये सोचने लग जाए कल ऐसा हो गया तो मुझे कोविड हो गया, तो हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है, मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ, कब वैक्सीनेशन आएगा, मैं अपनी वजह से अपने बच्चों को दे दूंगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं। बट अगेन यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि आप जो भी सोच रहे हैं वो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, दिस इज इन फ्यूचर, आपको नहीं पता कि ये होगा कि नहीं होगा। सो यू कैन डू सर्टेन एक्सरसाइजेज, अगेन जैसे मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन आपको आप खुद को काम करने में हेल्प करता है, मोर ओवर आपको प्रेजेंट में रहने में बहुत हेल्प करता है मेडिटेशन। So thank you so much Dr. Kriti for taking out time for us and sharing these valuable suggestions with our viewers. I also want to tell my viewers that Dr. Kriti has a YouTube channel by the name Dr. Kriti Vashisht. So if you want to take any advices, any personal suggestions that you want to seek, you can visit her YouTube channel or maybe contact her and see her videos. So thank you Dr. Kriti for today's suggestions. I hope the viewers would be able to take lessons and take your suggestions and practice them in our lives. Thank you for having me, and it was a great session. Thank you so much. Thank you.